Namaskar. As we were discussing Ragdari Sangeet in detail, and in my previous lectures I told you about what is Ragdari Sangeet, and Ragdari Sangeet is a very important characteristic of Indian classical music. And while explaining the Ragdari Sangeet, I told you about the Vadi, Samvadi, Anuvadi and Vivadi. These are very important notes, especially Vadi and Samvadi. Then comes the Anuvadi. Today we'll discuss about a very important question which normally students they keep on asking, or they sometimes get confused if they are not told clearly to them. This is about Samprakrtik Rag. Samprakrtik means the same nature. That means some of the rag, they sounds like the same. The notes which are used in these ragas are they resemble very much with each other, or sometimes even the aro avro is the same. So the question arises, what is the difference? So as I told you, Samprakrtik, that means the same nature, or we can also say sometime with the same notes. रागों में समप्रकृतिक राग जो है यानी एक जैसी प्रकृति वाले, तो प्रकृति में हम ये भी कह सकते हैं कि रागों में अक्सर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे राग हैं जिनमें आरो और अवरो बिल्कुल वैसा ही होता है, यानी जो स्वर उसमें प्रयुक्त होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो इसका अंतर कैसे पता चलेगा, यानी हम अलग अलग रागों को कैसे पहचान पाएंगे? इसके पीछे भी कोई बड़ी महत्वपूर्ण और एक गुप्त बात होगी। जी हाँ, रागों का जब उनकी रचना की गई होगी तो मात्र आरो और अवरो से राग नहीं बना होगा, यानी आरो और अवरो तो है ही, वो तो बहुत ही सबसे पहला सबसे बेसिक एलिमेंट जो है वो रागदारी संगीत का है। लेकिन आरो अवरो के बाद आता है पकड़। पकड़ एक ऐसी चीज है, यानी वो फ्रेज, वो स्वरों का गुच्छ जिससे कि राग को हम पहचान सके। तो आरो और अवरोह में मात्र एक जैसे भी स्वर लगे तब भी पकड़ के द्वारा या विशिष्ट स्वर संगति के द्वारा हम राग को अलग पहचान सकते हैं। अब यदि हम बात करें मात्र पकड़ की, तो पकड़ से ही पूरा राग जो है वो गाया बजाया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब कोई विशिष्ट स्वर संरचनाएं रही होंगी, या स्वर समुदाय रहा होगा, या स्वरों का किस प्रकार से लगाव किया राग में प्रयुक्त है, वो इसका मतलब कि रागों को अलग अलग बनाता है। There are many rags which resemble with each other if we just go through the aro and avro. Yes, aro and avro are very important because they are the basic. As we think about any rag, immediately we think about the aro and avro. That means which notes are being used in the ascending order and which are used during the descending order. And pakad is that the combination of notes or the phrase, a very important phrase through which we really identify the rag. But that does not give a complete picture of the rag. We have to know certain combination, certain phrases which are or which should be used in the rag while performing the rag, which makes a difference. The same, for example, we say there are twins or triplets, and identical twins or identical triplets. So how will the mother or the people around them will identify or will know about the difference, who's who? So there comes the nature. Even the face is the same, but the nature is different, the behavior is different, the taste is different, the habits are different. So that only and only we can know when we become very close to them, or when we keep on observing them, when we keep on watching them, or we become friend of them. That is the close connection only
gives us the proof that the person is different from another, though the same identical faces are there. So the same also comes when we talk about the ragas. There are many ragas like Bhairav and Kalingda, like Hamir, Kamod and Kedar, like Kamod and Chayanat, like Todi and Multani, like Bhopali, Deshkar and Aurav Shuddha Kalyan. So how students are going to give the difference very clearly while singing or while playing the instrument. Today we will discuss this topic in detail, because normally students, they ask this question that if even if the notes which are used in Aro and Avro are the same, how are we going to show or going to explain or going to sing, showing the difference very clearly. तो हम जैसे समप्राकृतिक राग कहते हैं, अब हम उदाहरण के तौर पर राग भैरव और राग कलिंगड़ा को लेते हैं, क्योंकि भैरव एक बेसिक राग है। भैरव को हम जब कहते हैं, जब हम रियाज करते हैं तो भैरव से ही आरंभ करते हैं। भैरव प्रातः काल गाई जाने वाला राग है, जिसमें कि धैवत और ऋषभ जो है वादी संवादी और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्वर हैं। ये गंभीर प्रकृति का राग है और इस राग में मंद्र, मध्य, तार तीनों में जो है विस्तार किया जा सकता है राग का। राग का यदि हम स्वभाव बोलें तो वो थोड़ा गंभीर, शांत है, और भैरव एक ऐसा राग है जो कि हमें रियाज करने से हमारे गला ये बनता है, या हम कहें कि हमारा गायन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी शुरुआत होती है। तो एक संपूर्ण जाति का राग है, यानी सभी सातों स्वर इसमें प्रयोग होते हैं। उसी तरफ यदि हम देखें तो कलिंगड़ा एक ऐसा राग है जिसे कालिंगड़ा भी कहा जाता है। इस राग में स्वर जो हैं वो बिल्कुल हूबहू भैरव की ही तरह है, यानी हम यदि उस राग को नहीं गाते हैं और मात्र आरो अवरो के स्वर देखें तो हम इन दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे। तो कलिंगड़ा जो है ये रात्रि के अंतिम प्रहर में गाए जाने वाला राग है और भैरव की तुलना में थोड़ा चंचल है, यानी उतना गंभीर नहीं है। और इस राग में धैवत और गांधार जो है वो वादी और संवादी है। ये राग जब हम इसकी संप्राकृतिक राग कहते हैं तो कभी कभी विद्यार्थी लोग कहीं पर पढ़ते हैं या उनको बताया जाता है कि परज एक राग है जो इसका संप्राकृतिक राग है। तो मैं अभी फिलहाल परज पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि परज जो है वो थोड़ा अलग राग है। हाँ, ये कह सकती हूँ कि परज का एक स्वर समुदाय या स्वर गुच्छ जो है वो, क्योंकि कलिंगड़ा में भी उसी प्रकार का स्वर गुच्छ प्रयोग होता है जो कि परज में प्रयोग होता है, तो ये एक अलग बात है। वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये परज का अंग यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, लेकिन आम तौर पे जब भैरव और कलिंगड़ा का अंतर हम लेते हैं या कलिंगड़ा को हम जानने की कोशिश करते हैं, तो स्वरों को देखकर विद्यार्थी को स्वाभाविक है कि एक कन्फ्यूजन या एक समझ एकदम से डेवलप नहीं होती कि ये राग कलिंगड़ा है या राग भैरव है। तो इसका अंतर कैसे हो और क्यों इनको संप्राकृति या सेम नोट्स वाले स्वर जो है या सेम स्वर वाले राग माने गए हैं, क्योंकि आप देखिए यदि हम इसके आरोह अवरोह को बिल्कुल सिंपल तरीके से गाते हैं तो कैसे होता है। सा रे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। ये स्वर भैरव में भी आते हैं और सेम स्वर जो है वो कालिंगड़ा में भी आते हैं। अब फर्क कैसे करेंगे? हाउ वी गोइंग टू नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ द रागास? Bhairav also having the same notes, Kalinga also having the same notes. Rishabh and Dhaivat will always be komal, or we can say always be flat in Rag Bhairav
also in Rag Kalingra. Now, how is the difference? See, when I am singing Bhairav, I will sing something like this. Dha sa re sa sa ga ma re sa dha re da sa sa ga ma da pa ga ma re sa sa da da sa re sa ra भैरव जो है ये मंद और मध्य में बहुत खिलता है। इसके नेचर के हिसाब से ये एक सीरियस राग है, एक शांत प्रकृति का राग है और बढ़त का राग है। बढ़त मीन्स जिसमें हम राग को एक्सप्लोर कर सके, राग की बढ़त कर सके, विस्तार से उसका आलाप या बंदिश का जो है उसमें विस्तार राग का दिखा सकते हैं। इन्हीं स्वरों को, द सेम नोट्स with Komal, Rishabh and Dhaivat, we going to sing Rag Kalingra or Rag Kalingra. Sa ni ni sa re ga ma pa da ni sa ni da pa ga ma ga re sa ni sa re ga sa re ga ma ma da pa ga ma da pa da ni sa ni da pa ga ma da pa ga ma re sa ni sa re ga. So as I told you, Gandhar is very important in Rag Kalingra. The Vadi and Samvadi are Dhaivat and Gandhar. Here in Bhairav, if we see, the Vadi and Samvadi are Dhaivat and Rishabh. One more very important thing, that in Bhairav, Dhaivat and Rishabh, they have a very special vibration with them while singing them, what we know as Andolan. That means that Dhaivat is little bit tilted towards the Pancham and Rishabh is tilted towards the Sharj. Now that when we sing the Rag Bhairav, it comes something like this. Da re sa re ga ma re. Bhairav is very clear. Sa re ga ma re sa da sa ga ma re sa. Sometime while doing the Alapchari, we leave Rishabh and straight away go to Gandhar when we are singing the Alapchari. Though both the ragas are from Thaat Bhairav, but see, while singing you can easily know the different nature of both the ragas. यहाँ पर जब हम गा रहे हैं तो आप देखिए बिल्कुल उसकी गंभीरता जो है वो बनी हुई है। कलिंगड़ा के हिसाब से हम देखें तो सरे ग ग म म
पा ग म ग र ग म ग र सा नि सा रे ग सा रे ग म ग ग म दा पा ग म ग ग म दा पा म प द नि ध नि सा नि द प ग म ग. Now this phrase is so beautiful. म प द नि सा नि द प ग म ग म ग रे सा नि सा रे ग धा प ग म ग द नि सा नि द प ग म ग म ग रे सा नि सा रे ग. वो जो चंचलता है, जो उस प्रकार का गंभीरता इस राग में नजर नहीं आती कालिंगड़ा में. तो देखिए स्वर बिल्कुल सेम है. सा रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा. स्वर बिल्कुल सेम है, अंतर मात्र उनके चलन से सामने आ जाता है. यानी कि राग सेम टू सेम, स्वर बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम, लेकिन जब उसको गाया बजाया जाता है तो राग का अंतर बिल्कुल सामने आता है. तो इसीलिए इनको हम कह सकते हैं कि समान स्वरों वाले जो राग हैं वो या संप्राकृतिक राग इनको कहा जा सकता है. तो ये एक और बात है कि ये जरूरी नहीं कि स्वर बिल्कुल सेम हो तभी संप्राकृतिक राग हो. ये मैंने एक उदाहरण आपको दिया है क्योंकि एक बेसिक राग के तौर पर भैरव जो है वो सभी विद्यार्थी जो है इसको पहले सीखते हैं, संगीत के विद्यार्थी. तो भैरव सीखते ही उनको एकदम से जब वो गाते हैं और जब अपना विस्तार खुद करने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि दूसरे राग की छाया उसमें आने लगती है. यदि विद्यार्थी इस प्रकार से भैरव गाए ग म ग ग म प म प द नि सा नि द प ग म ग धा ध प ग म ग म ग रे सा नि सा रे ग. सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, गाने में भी बहुत सहज लग रहा है, लेकिन वो राग भैरव की जगह कुछ और राग बना रहा है, तो इसे राग कलिंगड़ा कहते हैं. देखिए स्वर जो है उनसे भावों की अभिव्यक्ति होती है, एंड दीज भाव और दीज इमोशंस दे मेक द नेचर ऑफ द राग. एंड in fact, even if the notes are the same, their nature varies. So here in bandishes also we find the same difference. Like I'll give you the example of Bhairav, a bandish in Rag Bhairav and also a bandish in Rag Kalingda. See the difference. While singing only you can easily make out the difference, and the very main thing is the nature, which the emotion which is coming out of both the bandishes. The emotion tells something different in both the ragas. For example, first Rag Bhairav and then Rag Kalingda. Dha sa re sa sa re ga ma re sa. I'll sing a jhaptal bandish in Rag Bhairav. Omkar dhar omkar dhar naad ko saakar naad ko saakar
we feel the emotion which is a serious one, which is something with a very peace feeling. This type of bhav or the emotion comes when we are singing Rag Bhairav. That seriousness, वो गंभीरता जो है वो इन स्वरों से स्पष्ट रूप से झलकती है। तो हम जब गा रहे हैं तो इत्मीनान से स्वरों पर, स्वरों में भी आपने देखे द द सा द रे सा नि सा द, तो कहीं पे भी वो चंचलता जो है नजर नहीं आती, कहीं पे वो जल्दबाजी जो है वो नजर नहीं आती। राग बहुत सहज रूप से, बहुत आराम से विस्तार का राग है, तो बहुत खूबसूरत तरीके से जो है अपने भाव की अभिव्यक्ति करता है। तो इसी प्रकार जो है राग भैरव के बाद उन्हीं स्वरों से हम एक और राग पाते हैं, वो है राग कालिंगड़ा, जिसके बारे में हम आपको अपने अगले श्रृंखला में विस्तार से बताएंगे।